are the most important price action trading that you should know. If you are a price action trader, this is the fourth thing that you should must know if you are a price action trader. So, the first thing is to identify trend. The second thing is support and resistance. The third is identifying volume. And the fourth is entry and exit. So, let's break down into simple words. So, what is trend? अगर आपको मैं 1 मिनट के अंदर ट्रेंड को समझाऊँ तो ट्रेंड इज़ बेसिकली योर फ्रेंड. नेवर ट्रेड अगेंस्ट ट्रेंड. अगर आपको दिख रहा है कि प्राइस इधर से ऊपर जा रहा है, सो आपको कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है. आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस इज सिंपली मूविंग हायर एंड हायर स्ट्रक्चर विच इज बेसिकली ए अप ट्रेंड, राइट. एंड similarly price is moving down here. प्राइस इज मूविंग डाउन है. बहुत ही प्यारी तरीके से प्राइस नीचे आ रहा है एंड दिस इज ए डाउन ट्रेंड. वी शुड नॉट ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड. मैं आपको MTFA मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी बता चुका हूँ. अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो ऑब्वियसली चेक इट आउट एंड आपको समझ आ जाएगा कि ट्रेंड और भी अच्छी तरीके से आपको कैसे आइडेंटिफाई करना होता है. So the first thing is clear, identify trend. This is the first pillar of price action trading. The second thing is support and resistance. What is support and resistance? Support and resistance is nothing but the दिल और धड़कन of the market. अगर मैं आपको इंडियन मार्केट से निकल के मैं अगर आपको BTC के अंदर दिखाऊँ, सो BTC बिटकॉइन, अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ कि व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो आपको दिखेगा कि प्राइस इज टेकिंग सपोर्ट हेयर. इफ़ यू वांट टू प्लेस अ रेक्टेंगल हेयर देन जस्ट बस आपको और कुछ नहीं करना है. ये हमने क्या किया पहले समझो. प्राइस इज मूविंग upward from here and get a rejection by this candle, and again price is moving down and again price is pull up, again price is pulling up and price is breaking that resistance zone, and here again take a resistance into here. Support and resistance is a zone, not a trend line, not a horizontal ray, not a horizontal line. Support and resistance is a zone where buyers and sellers are sitting there with their massive capital, right? And again price is moving down up and take a resistance from here and again dip. Then this is and this support zone becomes resistance zone now for the price, and price is moving sideways into there, and again price is breaking down and this is becomes again a bolo resistance zone for the market. This is become a resistance zone for the market, a super cool resistance zone, and this is a uptrend, this is a uptrend, and also this is a downtrend you can see on the screen. So the first pillar is trend and the second pillar is support and resistance. Always trade with support and resistance. If you think that support and resistance, if you think or not, if you care or not, but support and resistance is the most important thing in the market. Okay, and the fourth thing is volume. First of all, just go that indicator, and this is the most
and this is the one indicator that everyone follow and you should obviously follow, because this indicator only tells you that you should take trade or not. By the way, ट्रेडिंग व्यू के अंदर BTC के चार्ट के ऊपर आपको वॉल्यूम बहुत ही कम दिखेगा, बिकॉज BTC इज़ बेसिकली ट्रेड इन दी आउट ऑफ इंडिया, राइट, एंड आउट ऑफ इंडिया ट्रेडिंग व्यू उतना यूज़ नहीं होता है। वहाँ पर Binance, देन FTX और भी बहुत तरीके का प्लेटफॉर्म होता है, ब्रोकर होता है, वहाँ पर लोग ट्रेड करता है। BTC के अंदर ट्रेडिंग व्यू के अंदर ट्रेड नहीं करता है। दैट इज़ वाई यू विल सी दैट दिस इज़ ए वेरी लो वॉल्यूम। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊँ किसी इंडियन स्टॉक के अंदर, मान लो HDFC के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि मैसिव वॉल्यूम, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैसिव वॉल्यूम, यानी कि अगर मैं इस वॉल्यूम को दिखाऊँ, सो यू कैन सी हियर दैट विच इज़ 2.96 मिलियन। ओके, 2.96 ट्रांजैक्शंस अगर आपको दिख रहा है। ओके, सो इफ़ आई जस्ट वांटेड टू ट्रेड इनटू दैट पोजीशंस, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट कर लेता, here is a support zone for the market and this is a resistance zone for the market। okay, अगर ये रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करता तो मैं इधर से, अगर वो रीटेस्ट करता तो इधर से मैं बाय ट्रेड लेता, एंड वो ब्रेक नहीं किया एंड इधर से मैं सेल के लिए जाता। मैं सेल के लिए क्यों जाता, फर्स्ट ये समझो। सो अगेन ब्रश ले लेता हूँ, एंड आपको यहाँ पर देख रहा है कि एक छोटा सा अप ट्रेंड आपको दिखा। ओके, छोटा सा अप ट्रेंड आपको दिखा, एंड सडनली यू विल सी दैट दिस इज द मेगा वॉल्यूम कैंडल। आप अगर पिछले कैंडल का वॉल्यूम देखोगे तो 6,34,000, पिछले कैंडल का देखोगे तो 3.333 लाख। ओके, बट सॉरी 3.33 लाख। एंड सो अगर आपको देखोगे कि अचानक से इस कैंडल का वॉल्यूम हो गया 2.96, एंड दिस वॉल्यूम बार इज रेड। व्हाट इज मीन बाय रेड वॉल्यूम बार? दिस इज मीन दैट दिस सेलर इज मोर एक्टिवेट नाउ। एंड सो इधर से आप लोग देख सकते हो कि इधर से एक रेजिस्टेंस जोन भी है, एंड इधर से एक बहुत ही बड़ा वॉल्यूम के अंदर लोगो सेल कर रहे हैं, तो इधर से मैं एक पोटेंशियली सेल का ट्रेड लेता एंड मेरा ये प्रॉफिट हो जाता है। ओके, सो ये ऑलरेडी मेड मार्केट के अंदर बोलना बहुत ही इजी होता है, लेकिन लाइव मार्केट में फट जाता है। सो दैट इज़ अनदर थिंग, मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर भी ट्रेड करके दिखाऊंगा। ओके, सो ये तीसरी चीज़ भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट थिंग ट्रेंड, आइडेंटिफाइंग ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, एंड द फोर्थ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंट्री एंड एग्जिट। when you should entry and when you should exit, that is the single most important thing. If you know that, then you will become the most profitable trader in the whole fucking world. Yes, I'm saying to you that entry and exit is the most important thing. Why? Let's break down it. If you trade, okay, so here if your strategy tells that, okay, so आप अगर यहाँ पर बाय कर लेते तो आपका लॉस हो जाता, आप अगर यहाँ पर बाय कर लेते तो आपका प्रॉफिट हो जाता। आप अगर देखोगे कि मार्केट का जो एंट्री और एग्जिट है, okay, so we all know that what is trend, what is support and resistance, what is volume, and the most important thing that divides us from others is to take when to trade and when to buy or sell। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है एंड आप बाय कर लिए, अगर आप टॉप पे बाय कर लिए तो मार्केट सीधी बात है, मार्केट उधर से नीचे आएगा एंड यू विल एंड अप लूजिंग मनी। एंड जो बंदा मार्केट के बॉटम पे बाय कर लिया था उसका तो प्रॉफिट हो गया एंड वो टॉप पे बेच के निकल गया, एंड आप देख रहे हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है एंड आप टॉप पे बाय कर लिए एंड मार्केट ने नीचे आ गया, तो यू आर लूजिंग मनी।
So that is the most important thing that divides the successful trader and unsuccessful trader. एंड मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड लेने में हार्डली 2 to 3 सेकेंड्स लगता है, लेकिन आपको कब ट्रेड लेना है एंड आप कब बाहर निकलोगे ट्रेड से, उसको समझने में 20 साल 30 साल भी कम पड़ जाता है. यानी कि when should I entry or when should I exit, that is the most important thing. मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ ये. So this is the fourth pillar of price action trading. प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर कोई भी इंडिकेटर्स नहीं आता है. अगर आप इंडिकेटर्स ट्रेड करना चाहते हो तो आप कर ही सकते हो. देयर इज़ नॉट एज सच रूल. लाइक मार्केट के अंदर बहुत सारा रूल होता है. SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लगा लो, देन बहुत सारा होता है, वो नाम भी मुझको नहीं मालूम. मार्केट डजेंट केयर इफ़ यू earn from the market. So everybody will respect you and everybody will, so everybody in the market came here to earn money, right? अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर कोई भी इंडिकेटर्स यूज़ नहीं कर सकते, तो आपका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप यूज़ कर सकते हो. आपको जो कुछ करना है मार्केट के अंदर आप कर सकते हो. नो बडी विल चेक दैट, नो बडी विल पनिश यू फॉर दैट. बट आपको एंड अप प्रॉफिटेबल होके ही मार्केट से निकलना है. एंड दिस इज़ द मोस्ट, एंड दिस ये चीज़ आपको दिमाग के अंदर फिट कर लेना है. ओके, सो साइकोलॉजी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि ये सब सपोर्ट, रेजिस्टेंस, वॉल्यूम ये सब हम सब जानते हैं क्या होता है. लेकिन जो डिवाइड करता है कि 90% ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी इन टू ऑप्शन ट्रेडिंग और इन टू इंट्राडे ट्रेडिंग, एंड 10% अर्न करता है, जो 10% प्रॉफिटेबल होता है. एंड उसका जो साइकोलॉजी है वो डिफरेंट है 90% लोगों से. दैट इज़ वाई दे आर अर्निंग मनी. ओके, एंड आप 80-20 रूल भी जानते हो कि 80% of the money is gone to 20% of the people, and 20% of the money is gone to 80% of the people. So 80-20 रूल भी कम करता है. लाइक अगर आप देखोगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर एज सेबी सेज दैट 90-95% ट्रेडर आर लूजिंग मनी इनटू ऑप्शन ट्रेडिंग. ओके, मैं 90% को मान लेता हूँ कि 90% ट्रेडर आर लूजिंग मनी इन ऑप्शन ट्रेडिंग एंड 10% ट्रेडर आर एक्चुअली मेकिंग मनी फ्रॉम ऑप्शन ट्रेडिंग. एंड उस 10% के ऊपर आप अगर 80-20 रूल लगाओगे तो आपका निकलेगा उस 10% के ऊपर 20% आर एक्चुअली मेकिंग मनी 80%, and 80% of the people are making money 20%. सो वो जो 20% पीपल है जो 80% मनी मेक करता है, वही लोग होता है राकेश झुनझुनवाला, वही लोग होता है वॉरेन बफे, वही लोग होता है अंबानी होता है, वही लोग होता है मुकेश अंबानी, वही लोग होता है अदानी. यही सब लोग निकलता है. सो दे नो समथिंग दैट वी डो नॉट नो. And I think this is the mysterious thing that we should always figure out. So ये सब कुछ नहीं होता है, just be focused and work upon it. And if you are patient into market, then market will obviously reward you for that. If you respect to the market, if you are not always more that मैं आज के मार्केट से कमा के निकलूँगा, so market will obviously punish you for that. And always believe in your setup, always trust in your setup, and entry when your setup is telling you that yes, this is the time for entry. Do not entry in force, because आप entry करते हो या आप exit करते हो, market अगेन डजंट केयर. सो आपका मनी है, आपका कैपिटल है, आपको वो संभाल के रखना है. एंड द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू बिफोर कमिंग इनटू ट्रेडिंग, दैट आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि मेरा कैपिटल लूज़ नहीं होना चाहिए. मैं प्रॉफिट को
मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊँ ये आपका माइंड में नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये आप अगर कैपिटल को लूज़ कर बैठते हो एंड आप अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करते, आप प्रोबेबिलिटी फॉलो नहीं करते, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर। ये सब सुपर ट्रेंड, ये सब बॉलिंजर बैंड, RSI, MACD, ये सब यूज़ करते हैं। हज़ारों लोग ये सब यूज़ करते हैं, लेकिन हज़ारों लोग क्या पैसा कमाते? नहीं कमाते। बिकॉज दैट डजेंट मीन दैट ये MACD, ये सुपर ट्रेंड काम नहीं करता। ये इसका जो फैक्टर आता है, ये फैक्टर आता है माइंड के ऊपर। इसका जो फैक्टर आता है, ये फैक्टर आता है आपका साइकोलॉजी के अंदर। आपका साइकोलॉजी कैसे, अगर आपको दिख रहा है कि लॉस हो रहा है, तो आपको वहाँ पर पैनिक नहीं करना है, आपको वहाँ पर क्या करना होता है। एंड दिस इज़ what differs, मैं आपको पहले बताया, this is what differs from the profitable trader and the unprofitable trader. So I hope you guys get it what is price action trading में and मैं आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी का भी ज्ञान दे दिया. So I hope you like it. So yeah, आपको अगर ये वीडियो अच्छा है तो give a thumbs up and I will see you in the next video. Bye.